الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کے اس سبھا کے سبھاپتی صاحب، منچ پر اپستھت حضرات علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، সপ্তাহী প্রথম একটা রিকোয়েস্ট আর দরখাস্ত, এই যে মাঝে মাঝে জায়গা খালি আছে, আপনারা একটু আগে আইলে ভালো হয়। थोड़ा आगे आने का दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। समय बेश নাই, আর আজকের যে প্রোগ্রাম আসলে খতমে বুখারী শরীফের প্রোগ্রাম, প্রধান অতিথি সাহেব আলহামদুলিল্লাহ তশরিফ আনছেন। ওনার মূল্যবান ভাষণ আর বুখারী শরীফের দর্শ হইব, বাদে ইনশাআল্লাহ মকবুল দোয়া হইব। আমি আপনার সামনে সময় যদি সাথ দিয়ে এই তিনটা কথা কইতাম। নাম্বার এক, চাঁদের যে মাস চলতেছে, এই মাসটা হইল রজবের মাস। আর রজব মাসের আজকে 26 তারিখ শেষ হয়েছে, আমরা 27 তারিখের রাইতো আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়া তশরিফ আনছিলাম। আর আপনার যে কয়েকটা বড় বড় মুজিজাত, ওই মুজিজার ভিতরে একটা বড় মুজিজা হইল মেরাজ। মেরাজের বাকিয়া কোন সন কোন তারিখও পেশ আইছে, মুহাদ্দিসিনে কেরামের বড় ইখতিলাফ, কিন্তু একটা কওল আছে कि रजब मासेर 27 तारीखेर जे राय, आजकेर जे राय, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराजो तशरीफ लइया गेছিলা। আমরা আলহামদুলিল্লাহ খাস করিয়া মেরাজের যে রায়, কোনো খাস ইবাদত করি না, হাদিস কোরআন থেকে সাবিত নাই। কিন্তু ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বড় বড় সিটি, বড় বড় শহর, খাস করিয়া আজকে আপনারা হায়দ্রাবাদ যদি যান, তে রমজান মাসের যে রায়, রমজান মাসের রায় লাইলাতুল কদর 27 রমজানের যে রায়, কতটুক রোশনি, মসজিদ ভিড় নাই, যত বেশি ভিড় আজকের রায়। ওই রকম করতে লাগে না, কিন্তু যেহেতু একটা কওল আছে
کہ میراجو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات میں گئے تھے. اللہ نے آج کی رات میں اپنے پیارے نبی کو اپنے پاس بلایا تھا. تاریخ حسابے یہ گھٹنا کا بالکل مختصر شارٹ حسابے یاد رکھتے لگے اور کوئی گھٹنا تکی کوئی ایک عبرت اور نصیحت حاصل کرتے لگے. سمے نائے تفصیل بیان کرا دیتو نا, ماترو دوئی تین کا کتا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراجر جے واقعہ پیش ایسے دوئی حصہ. ایک حصہ ہوئی لو مسجد حرام تکی بیت المقدس پردن کو. قرآن کریم 15 نمبر پارا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہ آیتیں بھترے اللہ نے اس سفر کو بیان کیا کہ مسجد حرام سے اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ٹائم میں, رات کے سمے میں مسجد اقصی سیریا, مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے, وہاں تک آپ کو لے جایا گیا. براق سے ایک خاص جانور سے آپ کو لے جایا گیا. وہاں آپ نے امامت کی تمام انبیاء کرام کی. سمست انبیاء کرام ایک قولا سے کہ آسمان و جوار آگے اپنے امامت پر سن, اور ایک قولا سے کہ آسمان تکی آور پورے جب آپ ریٹرن آ گئے تب آپ نے تمام نبیوں کی امامت کرائی. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام, اور حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پردن جو تو انبیاء کرام اللہ نے دنیا میں بھیجا, سمست انبیاء کرام آپ کے پیچھے مقتدی. وہی کارنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کا نام امام الانبیاء, سمست انبیاء کرام اپنے امام. اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے پھر آپ کو ساتوں آسمان پر لے گیا. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے, دوسرے پر حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے, چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے, پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام, چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور 7 نمبر آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 5ویں سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے, اور سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکلا اکیلے آگے گئے. اللہ سے ملاقات اور اللہ سے بات چیت ہوئی. 50 وقت نماز اللہ نے فرض کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئلہ کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امتی ایک بارے کمزور 50 ٹائمر نماز پڑھاتا مشکل ہوئے تو اپنے اللہ کا سے کیا درخواست کرو اللہ تعالی نماز کو کم کر دے. 9 بار کے سن 5 ٹائم کا نماز کم کیا. جب 5 ٹائم کا نماز باقی رہ گیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئلہ آر امی جائتم نا اللہ تعالیٰ کوئی سن کہ اے محمد امی اپنا امتر جننے 5 ٹائمر نماز کا فرض کرسی کنتو بکل حسنت 10 امثالہا. ایک نماز پڑھ لے 10 نمازের ثواب পাইবা, 5 نماز پڑھ لے پورا 50 نمازের আপনার উম্মতি ثواب পাইবা. তে আমরা নামাজ 5টা কিন্তু সওয়াব আলহামদুলিল্লাহ 50 নামাজের আমরা কম সে কম পাইতেছি.
ওই সফরের ভিতরে कोई एक का घटना पेश ऐसे एक नंबर घटना जब आलमे बरज़ख में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, आलमे बरज़ख का मुशाहदा कर रहे थे, तो एक जगह देख सुन कि बहुत मानुष आसन और वो सब के सब पानी भीतरे जोले भीतरे समुद्रों में, नदी में, तालाब में है। और जब वो तालाब से समंदर से निकलने की कोशिश करता है तो किनारे में कुछ लोग हैं, वो बड़ा बड़ा पत्थर से उन लोगों को सर पर, माथा के ऊपर में मारता है। जब पत्थर से मारता है तो वो आदमी फिर दूर पानी में चला जाता है। আবার চেষ্টা করে कि আমি বাইরে आईता, बाहर निकलने की कोशिश करता है। जब किनारे में आता है तो फिर पत्थर से मारा जाता है और वो पानी में चला जाता है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से प्रश्न किया कि ये बदनसीब मानुष जिसको पत्थर से मारा जा रहा है, तरक्की मानुष का। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मानुष बोला, ये दुनिया में जब जिंदा थे मुअज्जिन मस्जिद में अजान पुकारता था, हैया अलस सलाह की दावत, आओ नमाज तरफ, नमाज की तरफ आओ, नमाज की दावत देता था, किंतु ये लोग नमाज के लिए नहीं आते थे। आज उसकी शास्ति और सजा और पेनिशमेंट उनको दिया जा रहा। आज के मेराजे रात एक कौन हिसाबे इंशाअल्लाह আমরা জিন্দেগি কোনদিন নামাজ ছাড়তাম না, বলবো ইনশাআল্লাহ। আমি বেশ লম্বা করিয়াম না, কিচ্ছু আগে যাওয়ার পরে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু अलैहि वसल्लम देख सुन कि बहुत मानुष आसन और उनका जो नाखून है नोक, वो लोहे का बना हुआ है और अपने नाखून से, नोक से निगर पेश और चेहरा को नोच रहा है, अपने छाती को, भूख को नोच रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से प्रश्न किया, तारा की मानुष? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोयला कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में दूसरों की गीबत और गिल्ला करते थे, एक साथ में बैठकर कभी उसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, कभी उसकी गीबत करते थे। अल्लाह ने गीबत करने वालों को ये शास्ति और सजा दिया कि उनका नोक लंबा लंबा लोहे का नोक बनाया और वो अपने नाखून से, नोक से अपने चेहरे को नोच रहा है, अपने बुक को और सीना को नोच रहा है। इंशाअल्लाह आज के तक की আমরা গীবত করতাম না, इंशाअल्लाह বলবো इंशाअल्लाह। नंबर 3, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए हजरात उलमाए किराम, खास करके आप लोगों के लिए আইম্মায়ে কিরাম, খাস करके আপনারা লাগি আর সবথেকে বেশি আমি নিজের জন্য अल्लाह ताला हम सबको इबरत हासिल करने की तौफीक दान फरमाए, आमीन। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख सुन कि कोई एक जन मानुष आसन और फरिश्ता लोहे का कैंची लेकर और उसका होंठ ये काट रहा है, होंठ को काट रहा है और जिगड़ा को कैंची से काट रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रश्न करला कि ए मानुष गुला के उनकी जबान को, उनके जिगड़ा को और उनके होंठ को क्यों कैंची से काटा जा रहा है, कारण क्या से? हजरत उलमाए किराम, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोला कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारा ओइला वाइजीन, नसीहत करने वाला, वाज करने वाला, वक्ता, भाषण, तकरीर करने वाला, ये कौम को, आवाम को दीन की बात बतलाता था कि तुमरा नमाज पढ़ो, तुम रोजा रखो, तुम उमुक काज करो, कुरान की तिलावत करो, दान खैरात करो, आवाम को नसीहत करता था, किंतु निजे एक खुदा बुला कुकरे अमल नहीं करता था, अमल नहीं करता था। बुखारी शरीफ रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुछ आलिम उलमा को जहन्नम में डाला जाएगा
और जहन्नम के आগুन में बहुत पावर होगा। आगुन में जलने के कारण उसका जो आंख है, बॉल जिसको आप लोग कहते हैं, आंख पेट से निकलकर बाहर आ जाएगा और वो अपने बॉल को लेकर आगुन में जहन्नम में चारों तरफ घूमेगा, चक्कर लगाएगा। जहन्नमेर ভিতরে আর মানুষ হইবা, তারা আইবা আর কইবা যে ভাই আমরা তো জাহান্নামে আছি, কিন্তু আমার বর আর আমার আত্মা তো ভিতরে রইছে, তোমার বরটা বাহির আয়া, इसका कारण क्या है? তুমি কি পাপ দুনিয়া করছো? তারা কইবা যে আমরা ওয়াইজ আসলাম, আমরা নসিহত করতাম, ওয়াজ করতাম, বয়ান করতাম, আমরা দুনিয়া তাকরীর করতাম, ভাষণ করতাম, কিন্তু আমরা নিজের তাকরীরের উপরে, নিজের ভাষণের উপরে আমল করতাম না। हम दूसरों को नसीहत करते थे, अतामुरून अन्नास व तंसौन अनफुसकुम, तुम लोगों को अतामुरून अन्नास बिल बिर, दूसरों को, आवाम को भलाई की, नेकी की दावत देते हो और तुमरा निजे नेकी ऊपरे अमल करो ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, जे काष्टा तुमी निजे करो ना, दूसरे लोगों को करने के लिए क्यों करते हो? ये आलिम उलमा की सजा होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस तरह की सजा दे और जहन्नम के आगुन से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ आगे गए, आगे आवार परे देखछन যে দুইটা বড় বড় ডেগ আছে, একটা ডেগের ভিতরে খুব ভালো মাংস, गोश्त, मीट बना हुआ है, अच्छा से बनाया है, बिल्कुल जैसे आपके इलाके में भुना नीला मांस बनाते हैं, ऐसे ही बहुत स्वाद और टेस्टी गोश्त बना हुआ है। और एक डेग आसे, ये डेगेर भीतरे पोचा खराब मांस रखा हुआ है। कुछ लोग वहां पर है, वो अच्छा वाला मांस नहीं खा रहा है, सड़ा हुआ वो खराब मांस खा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रश्न किया, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग है, ये अच्छा खाना नहीं खाता है और खराब पोचा सड़ा हुआ गला हुआ खा रहा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जिनकी शादी हो गई थी, जिनके पास बीवी थी, वो अपनी बीवी से, अपनी वाइफ से अपनी जरूरत पूरा कर सकता था, किंतु अपनी वाइफ से शारीरिक रिश्ता नहीं बनाकर और दूसरी औरत से, बाजारी बेटी मानुष, बाजारी महिला के साथ शारीरिक रिश्ता बनाता था, उसकी शास्ति और उसका सजा अल्लाह ने ये दिया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। कोई रकम कोई एक का गुनाह और गुनाहगारेर सजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर देखा। समय एक बार कौम, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको खास तौर पे मेराज में जो वाकया हुआ और जितना गुनाह और पाप आप लोगों के सामने बयान किया गया, अल्लाह ताला इस समस्त पाप की हमरा हिफाजत करो, पक्का आमीन। नंबर 1। नंबर 2, আজকের যে ওয়াজ বাগবাড়ি মাদ্রাসা, বাগবাড়ি মদিনাতুল উলুম বাগবাড়ি মাদ্রাসার ওয়াজ, আমার ভাই ও বুজুর্গ ও দোস্ত, মাদ্রাসা কি জিনিস আর খাস করিয়া এই জামানাত মাদ্রাসার কত দরকার আছে, আমি একটা কথা পড়াই জায়গা কই। আমি পড়াই জায়গায় একটা কথা কই, এই কথাটা হইল যে আমরা তো যে দেশের ভিতরে আছি একটু কষ্ট হইতেছে, আমরা একটু তকলিফের ভিতরে আছি। আজকে একটা ঘটনা, আর কিছুদিন পরে আর একটা ঘটনা, আর কিছুদিন যাওয়ার পরে আর একটা ঘটনা, बिल्कुल আমরা কষ্ট আর তকলিফের ভিতরে আছি। কিন্তু इसके बाद भी मेरे मुसलमान भाइयों, हमरा अल्लाहर शुक्र अदा करी कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा देश है हमारा, इतना अच्छा देश है हमारा कि मुसलमानेर संख्या का अगरचे कम आसे, किंतु इसके बाद भी
মুসলমান এখন পর্যন্ত बहुत इज्जत और शांति के साथ इस देश के अंदर है। এই দেশের ভিতরে আমরা কতটুক আজাদ আছি আপনারা সামনে আমি যদি বয়ান করি মনে হয় আপনারা বিশ্বাস করবা না। इस्लामिक যে দেশগুলো আছে खास करके गल्फ कंट्री, आप पूरे गल्फ कंट्री में चले जाइए, सऊदी में, कुवैत में, कतर में, अबू धाबी, दुबई, शारजा, कहीं भी चले जाइए, ये जो मुगली सभा हो रहा है 2-3 किलोमीटर तक आपके सभा का आवाज का जो साउंड जा रहा है, कोई माँ का लाल है सऊदी अरब में जाकर इस तरह जलसा करके दिखला है। कोनो मुसलमान जलसा नहीं कर सकता है। शारजार ভিতরে একটা বড় ফিল্ড আছে। আজকে তাকি প্রায় 10 বছর আগে মৌলানা তারিক জমির সাহেব পাকিস্তান তাকি যাইতা আর ওনার বয়ান করতা লাখোं লাখ মুসলমান আইতা, কিন্তু কয়েক বছর আগে ওনার উপরে ব্যান্ড, इस तरह से वो बयान नहीं कर सकते। पाकिस्तानी एक पीर साहब पीर जुल्फकार साहब उनका मदरसा चलता था, वहां पर मदरसा चलता था। এখন मदरसा को बैंड कर दिया और चुपके चुपके किसी बाड़ी में किसी घर में किसी तरह से मदरसा चला सकता है। कुल्लम कुल्ला खुले आम दोनों मदरसा चलाने का परमिशन और अनुमति नहीं है। আমি 2006 সনে শারজা গেছিলাম। शारजा के ये जो फील्ड से अपना नौजुवान क्रिकेट का जो मैच होता है, जहां पर क्रिकेट का फील्ड और स्टेडियम है, वहीं करीब में मरकज की मस्जिद है। तबलीगी जमातेर बहुत बड़ो मरकज और बड़ो मस्जिद আছে। এই মসজিদের লগে একটা মাদ্রাসা আছে। মাদ্রাসে में कुरान हदीस की पढ़ाई আমরা আপনারা মাদ্রাসা যেরকম আজকে বুখারী শরীফের খতম ওই রকম वहां पर हदीस का सबक और शिक्षा दिया जाता था। मैंने अपनी आंख से देखा, जैसे यहाँ डेस्क पे बच्चे पढ़ते हैं, काठ का लकड़ी का बना हुआ तिपाही और डेस्क, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, वही रकम वहां पर मैंने अपनी आंख से देखा मदरसा चलता था। किंतु आवाज 2-3 बच्चर बादे 2-3 बच्चर পরে আমি ওই জায়গায় গেছি। যাওয়ার পরে আমি तहकीक করছি, मालूम ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बैंड लगा दिया और जितना ड्रेस था, जितनी किताब थी हदीस की, सब जब्त कर लिया और गवर्नमेंट ने अपने पास लेकर चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके देश में हजारों हजार मदरसा चल रहा है। এখন পর্যন্ত আমরা आजाद अपने लड़के को मदरसे में पढ़ाएं, स्कूल में पढ़ाएं, जहां भी पढ़ाएं। और एक घटना सुना दूं, আমরা यूपी একজন बहुत বড় আলিম, আমি নাম নিয়ে না কোনো মতলব আছে, দাওয়াতের কাজ করেন। এখন তার উপরে বড় বিপদ মুসিবত আছে, আল্লাহ তাআলা उस বিপদ और मुसीबत से उनको निजात दे। তাই নিচে আমারে কইলা যে মাওলানা সাহেব আমরা মুসলমান ইন্ডিয়ার ভিতরে কত বেশি আজাদ, আমরা এই নেমতের কদর করি না। তাই কইলা कि তাই अजमान शारजा और दुबई के करीब एक सिटी है अजमान, इस इलाके के लोग भी अजमान में बहुत मेरी मुलाकात है। तो अजमान में उन्होंने एक सेंटर बनाया, दावा सेंटर, दावत और तबलीगेर एक का ऑफिस उन्होंने वहां पर बनाया और उस सेंटर का जो नाम रखा, एक बैनर लगाना था, साइन बोर्ड लगाना था। तो वहां म्युनिसिपैलिटी के लोगों से अनुमति लिया, इजाजत परमिशन लिया। तो तारा फिक्स पर्सन कि अपना ऑफिस का जो नाम होगा और उसका जो साइन बोर्ड होगा उसका साइज इतना होना चाहिए। साइज फिक्स करके दिया कि 4 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा, इससे बड़ा या इससे छोटा नहीं। और उसमें जो लिखा जाएगा वर्ड और शब्द होगा उसका कलर भी फिक्स कर दिया, व्हाइट कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, जो भी है उसका कलर भी फिक्स कर दिया। बोर्ड जब रेडी हुआ तो कलर में थोड़ा सा अंतर हो गया था। যেরকম তারা পারমিশন দিত कि तो तुम्हार साइन बोर्डের कलर ग्रीन হইতো,
ग्रीन की जगह पर येलो हो गया। 3-4 दिन जावर पूरे म्यूनिसिपैलिटी का आदमी आया, शुरती पुलिस वाले आए और आकर ऑफिस में जो इंचार्ज था वहां का, उसको कहा कि इस बोर्ड को जल्दी यहां से हटाओ, नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस खत्म हो जाएगा, तुम्हारा लाइसेंस शेष हो जाएगा। तो बोर्ड कैसे बनेगा, बोर्ड में लिखा कैसे जाएगा, इसके लिए भी म्यूनिसिपैलिटी से इजाजत और परमिशन लेना पड़ता है। आज के वो जो रास्ता तक में ये लाइट लगाया, बड़ा बड़ा बैनर लगाया, बाजार में, मार्केट में, जगह जगह पर आज के इस बात का जो बैनर लगाया, किसी पुलिस वाले ने आकर आपको बाधा दिया? मना করছো নি? बिल्कुल ना। अल्हम्दुलिल्लाह, ए देशेर भितरे আমরা